Good evening, students. Myself, R.S. Jha from Department of BSc IT, KS College, Saraikela. Student, this online class is for BSc IT SEM 4th student. The paper number is BIT C9. The paper name is Java Programming. And in today's class, we are going to learn how to install or check whether Java is installed in our system or not, as well as we will learn about first Java programming. So let's get into it. So first of all, we need to check whether Java is pre-installed in our system or not. If it is pre-installed, then it's okay. We need to only set the path. If it is not installed, first install Java in your system. To so to check whether Java is installed in your PC or not, first of all, we need to go to command prompt and type the following command in the command prompt, that is, which is mentioned here. If Java is installed in our system, then we will see the following commands on the command prompt screen. That is, it will show the runtime environment, build version of Java, etc. Okay. If Java is not installed and if it does not show these commands in your system, then first of all download and install Java in your system. After downloading and installing the Java in your system, we need to set the path of the Java variable. Now, the steps to set path in your system in Windows operating system are as follows. First of all, go to System Properties, that is, go to the Control panel, then go to the System and Security, then go to System, then go to Advanced System Setting. Under Advanced System Setting, you will find something named as Environment Variable under the Advanced tab. Now, environment variable is used to set the path so that the Java system can recognize and link your program to the Java system. Now, then we need to select the path variable in the system variable and click on edit button. Then click on the new button and add the path where the Java is installed. मीन्स जहाँ पे जावा तुमने इंस्टॉल किया है सिस्टम में, उसका जो पाथ है वो कॉपी करके हमें इस पाथ वेरिएबल में पेस्ट कर देना है. बेसिकली जावा जो इंस्टॉल होता है वो होता है सी डायरेक्टरी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर जावा, उसके अंदर जेडीके जो भी वर्जन हो उसके अंदर. सो ये पाथ को कॉपी करके हमें और साथ में /bin भी हमें पाथ में ऐड करना है. इसको हमें पाथ वेरिएबल में पेस्ट कर देना है. देन क्लिक ओके एंड सेव द सेटिंग्स. जब हमने ये टास्क परफॉर्म कर दिया, उसके बाद हमें फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और चेक करना है कि हमारा जावा पाथ जो है वो प्रॉपरली सेटअप हुआ है कि नहीं. इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है CMD में, और कमांड प्रॉम्प्ट में क्या टाइप करना है, जावा डैश वर्जन, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में शो किया था, सी यूज़र योर नेम जावा वर्जन. ओके, ये हमें कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करना है.
और अगर हमारा जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, उसका पाथ सेट हो चुका है, तो हमें इस तरह का कमांड स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, जब उस तरह का कमांड हमें जावा का वर्जन, जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट अगर स्क्रीन पे शो हो रहा है, मतलब हमारा जावा प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। अब हम अपने प्रोग्राम को किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड में लिख सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं और उस जावा प्रोग्राम को हम लोग ईज़िली रन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। नाउ बिफोर वी राइट द फर्स्ट जावा प्रोग्राम, we need to know that Java is a truly object-oriented programming language, as I have told you in previous class. Truly object-oriented programming language means in Java everything is based on class and object. Now, the class name we specify will be the file name with .java एक्सटेंशन। जावा का प्रोग्राम का जो भी फाइल नेम होगा या सोर्स कोड फाइल होगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम वो होगा जो हमारे क्लास का नाम है। किस क्लास का नाम? जिस क्लास के अंदर हमारा मेन फंक्शन है, उस क्लास का नाम ही हमारा फाइल नेम होना चाहिए विथ .java एक्सटेंशन। So let's create our first Java file. This Java file is named as myclass.java. इस Java फाइल का नाम क्या है? myclass.java। क्यों हमने myclass.java रखा? क्योंकि हमने जो यहाँ पे क्लास क्रिएट किया उसका नाम क्या है? myclass। और क्योंकि ये जावा प्रोग्राम है, इसलिए इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .java। हमने पहले क्लास में ही बताया था। अब ये प्रोग्राम कर क्या रहा है? ये प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे, ये सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेगा, क्या? हेलो वर्ल्ड। ओके, सो हमारा क्लास का नाम क्या है? myclass.java। तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं प्रोग्राम को? देखो, पब्लिक क्लास माई क्लास, ये हमारा क्लास का नाम क्या है? माई क्लास। उसके अंदर हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये हमारा क्या हो गया? मेन फंक्शन है, क्लास का जो मेन फंक्शन है। ठीक है, पब्लिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, वॉइड क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग args क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिंपली हमें समझना है कैसे हम लोग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। उसके नीचे हमने क्या लिखा है? system.out.println हेलो वर्ल्ड। हमें प्रिंट क्या करना था? हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या यूज़ किया है? system.out.println हेलो वर्ल्ड। फिर जितने भी कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन किए थे, सारा को क्लोज कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम था, वो वहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब देखो, जैसे ही हमने ये प्रोग्राम लिखा, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। किसके नाम से? जो क्लास का नाम था। क्लास का नाम क्या था? माई क्लास। इसके हमने सेव कर लिया myclass.java। और ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था, ये किस में लिखा था? किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। जैसे विंडोज़ में टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? नोटपैड। नोटपैड में हमने लिखा, उसको हमने सेव कर लिया myclass.java फाइल नेम से। और ये myclass.java ही हमारा क्या हो गया है? सोर्स कोड फाइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स कोड फाइल। ओके, नाउ ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड नेविगेट टू द डायरेक्टरी वेयर यू सेव्ड योर फाइल। अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और
कमांड प्रॉम्प्ट का हमको कमांड को कहाँ पे ले जाना है, जहाँ पे हमने उस प्रोग्राम माई क्लास डॉट जावा फाइल को सेव किया था उस डायरेक्टरी में हमें जाना है। उस डायरेक्टरी के बाद जाने के बाद हमें इस क्लास फाइल को, सोर्स कोड फाइल को हमें कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए जावा में कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, जावा सी। तो हमने कंपाइल करने के लिए क्या लिखा, जावा सी माई क्लास डॉट जावा। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो हमारा माई क्लास डॉट जावा फाइल कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बाइट कोड फाइल में बन जाएगा, बाइट कोड फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हमने कंपाइल कर लिया है प्रोग्राम को, तो हमें उसे अब क्या करना है, रन कराना है। रन कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जावा इंटरप्रेटर यूज़ करेंगे। फिर से हमें कमांड प्रॉम्प्ट में हमें क्या टाइप करना है, जावा इंटरप्रेटर क्या होता है, जावा। तो हमने क्या टाइप किया कमांड प्रॉम्प्ट में, जावा माई क्लास। यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना है, सिंपली हमें क्या यूज़ करना है, जावा इंटरप्रेटर दैट इज़ जावा, और हमारे फाइल का नाम क्या था, माई क्लास। जब हम ये रन होगा, ये कोड रन होगा, तो उसके बाद हमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिल जाएगा, जो भी हमने प्रिंटलन मेथड के अंदर रखा था, जो कि था हेलो वर्ल्ड, हमको ये आउटपुट में मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट। होप you have learned how to install Java program and how to write the Java program. Thank you.